Hello learners, welcome to today's program on vocational courses. Today we will be discussing about bakery and confectionery, scope and future prospects. For this we have with us Chef Ronajit Kundu, who is associated with Banarsi Das Chandiwala Institute of Hospitality and Catering Management, and he has a huge experience in this area. Welcome to the program, sir. Thank you, ma'am. Friends, with the changing lifestyles, influence of West on our food habits, as well as increase in working population of women, there has been a huge demand of bakery products in India. And this is expected to increase a lot in the coming years. This is a very upcoming area. So today we will be discussing about all the opportunities that we have with us in this area. Sir, Right. we would like to know from you how lucrative this profession is. राइट Yeah. थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी पहले क्या होता था कि इन द ओल्डन डेज पीपल राइस और रोटी या दाल सिंपल यूज़ वही खाते थे बट एडवांसमेंट ऑफ एवरीथिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी there was innovation, there was improvisation. तो क्या हुआ कि people wanted to have थोड़ा सा diversification. जी तो straight मैदा खाने से मैदा में कुछ ऐड करके they used to make some product. So Right. that was the development, that was the improvisation which was happening. तो over the years ऐसा हुआ कि people started having bakery products also. एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि द बेकरी इट बिकेम अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आज के डेट में especially during this COVID or pandemic, almost every newspaper or every article, every almost in every digital medias or something, we find like home baking, and especially if not home baking. There has been COVID when we were in the lockdown stage, everyone was doing something in baking or yes cooking, yeah right? So this is the a lot of development which has come up, and especially जो bakery जो है, let me tell you, this is not Indian. जो bakery जो हम जो normally जो जी pastries or what we do all these things, these are very much Western, European. And Indian mein, yes, of course, we have our own biscuits, we have our own rotis, which are made from the flour and all. But then mostly ये bakery जो है, it's a Western concept. And then what happens is present day जो है the consumer जो है, the buyer जो है, for the bakery products, there has been a lot of advancement, there has been a lot of changes. In the sense that they are looking for more lighter products, they are looking for more flavors, more variations, or especially India में बात किया जाए तो the main diversification or the main जो demand जो है buyer की तरफ से, that is mainly eggless baking. So eggless baking, it is coming up in a big way. Everything consumers जो demand करना चाहते हैं, तो it's very much eggless. Of course, flavors also, like imported flavors. 5-6 साल पहले, we did not have flavors like red velvet or like Right, sir. blueberries हो या gooseberries हो. A lot of berries have come in. And then of course जो demand जो है plating also, अगर if it is like a pre-plated dessert, तो desserts के ऊपर वो कुछ ज़्यादा ही decorations या chocolate garnishes उनका demand है. But then of course India is such a big country. यहाँ पे हमारे 1 tier, 2 tier, 3 tier cities जो है, वहाँ पे भी demands are different. Like in a of course 3 tier में the cost factor is there. So in a place like Delhi जहाँ पे हम हैं, तो Delhi NCR में the demands are mixed, but then mostly exotic fruits or exotic decorations are being given.
तो ये डेवलपमेंट्स है बेकरी में, एंड देन इज गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे. राइट सर. अर्लियर सर बेकरी के बारे में अगर हम बात करें तो वी वुड लाइक इन जैसे लाइक यू टॉक्ड अबाउट द टियर सिटीज लाइक 3 tier cities or 2 tier, we would mostly be talking about breads and biscuits. Exactly. And now with the changing times and as we are becoming more aware, like consumer is becoming more aware, Right. and they are talking about new things like croissant and all, which we have not even heard before. Exactly. So this has also, Exactly. I mean, created a niche market, and where you need to improve your skills, as you Right. talked about, like it is a science, it is also an art where you have to use your creativity and Exactly. skills True, right. to come up to satisfy the consumer needs. Exactly. Yeah. So bakery industry हमारे इंडिया में what happens is the main the dominating, see bakery industry we can segregate like cookies and biscuits, cakes हो गए, pastries हो गए, there could be some other desserts also, but biscuit is something which is like the dominating in any city you go, first tier, 2 tier, 3 tier, biscuits is something like 84%, survey says that 84% is dominated by the biscuit. Now biscuit again there is like organized sector, I mean semi-organized sector. जी. There are big players which have huge plants on, they are giving us daily biscuits. और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, bakery is something like from the morning till throughout the day, at any point of time, whether we are sick, whether we are in a normal position, अगर sick है तो बीमार पड़े हुए हैं तो we have a little bit of milk and cookies or biscuits. So bakery is मतलब is throughout, I mean with us, like so इस हिसाब से देखा जाए तो there is a lot of scopes, and there's a lot of demand which is like day by day, which is by increasing, and then काफ़ी developments भी requirement है, there's a lot of scope for that, so like I'll tell you some data. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, bakery research companies, they are finding that in this year 2020, $7.2 billion, in 2019, that is the market value in the sense that the lot of people who are associated with the bakery, I mean bakery raw material, bakery ingredients, bakery business, everything, that was like $7.22 billion in the Indian market, and 12 billion in the next 5 years till projected till 2024. It is still it is projected that $12 million it would be there. Of course, this pandemic जो है it has given a big boost, we can say. Yes, it's a boost, and then it has to develop, or the figures might not little vary, but yes, this is the targeted figure. और जिस हिसाब से हम चल रहे थे, तो there was a lot of progress which is happening in this bakery industry. So like मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि हम बेकरी और पेस्ट्री पढ़ाई करने के बाद, या थोड़ा इसका स्किल डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट में करने के बाद, हमारे पास क्या क्या स्कोप है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिसन ब्रेड बेकर, आर्टिसन ब्रेड बेकर, एक तो मैं समझाना चाहूँगा कि बेसिकली फॉर द बेकरी देयर विल बी 2 types. एक तो है होलसेल, एक है रिटेल. होलसेल यानी कि one product will be made throughout, like and retail में जो है कि जो हम टेबल में जो हम काम करते हैं, maybe like big companies, Britannia, Parle, Mrs. Bector's and all, there are so many, they are manufacturers of huge quantities. Maybe 1 truck, 2 trucks of maida हम वो use कर लेंगे on a single day. Whereas the artisan means those who will be working by the hand. So that is the artisan bread baker. So ये skill development करने के बाद both the sections are open. एक तो wholesale में भी हम जा सकते हैं, एक retail में भी जा सकते हैं.
तो सेकेंडली इज़ बेकरी ओनर, जो आज के डेट में फॉर द पास्ट 5-6 मंथ्स जो हम कोविड में बैठे बैठे घर में टीवी देखते हैं या what we see is like on the mobile में भी जो न्यूज़ जो आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ जाते हैं, that is the home baking. It has got a special special stage, like special platform where students भी कर रहे हैं, housewives भी कर रहे हैं, even multinational companies का executives कर रहे हैं, and then there are hefty figures like five figure profits in or 6 figure profits in 5 or 6 months from home baking. Say home baking यानी कि from the comfort of home, people do not as it is shops were closed, तो लोगों ने क्या किया, a lot of people, they started from homes. I know a lot of people from Bombay, even from Delhi also, even from NCR, Gurgaon, नोएडा ऑल्सो, कि जो जिन्होंने घर से ही काम किए, एंड देन पीपल लव देयर प्रोडक्ट्स, सो अपने सोसाइटीज़ में जहाँ पे 200-400 फैमिलीज़ रहते हैं, वहीं पे काम चालू किया, एंड पीपल आर उनका एडवर्टाइजमेंट का माध्यम यही था, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म से ही करना. So, sir, and yes. this is the, I would say, this is the beauty of this profession, that there is no scale for it. You can start from a minimum Exactly. Investment, Exactly. and from the comfort of your home, when you Right. you do not want to go out and push in a lot of money into बिल्कुल, that, बिल्कुल. then you can start slow, and you can always increase it to and take it to any level, to a different Yeah, level. yes. Exactly. So what happens is bakery owner तो हम घर से भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास स्पेस है, फाइनेंस बैकअप है, तो हम अपना आउटलेट भी कर सकते हैं. इसके अलावा वी कैन बी अ केक डिज़ाइनर. तो केक डिज़ाइनर क्या होता है कि दीज द केक्स आर फिनिश्ड, और केक के ऊपर हम हाथों से, जैसे कि हाथ में मेहंदी करते हैं, तो उसी तरह हम केक्स में भी डिज़ाइन करते हैं. सो दैट इज़ या तो गार्निशेस बनाते हैं, चॉकलेट गार्निशेस, तो दैट इज़ द केक डिज़ाइनर का जॉब हमें मिल सकता है. या अगर बेकरी का है, तो बेकरी है हमारे पास, तो वी कैन डू इट फॉर आवर ओन केक्स ऑल्सो. सो चॉकलेटियर एक वर्ड है कि जो चॉकलेट्स बनाते हैं, दिवाली आने वाले हैं, द मार्केट इज़ फ्लडेड विद बेकरी प्रोडक्ट्स से, कुकीज़ से, केक से, and of course chocolates तो बहुत सालों से I know मतलब I know several students जहाँ पे मैं कोच करता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर्स, जो कि दे आर मेकिंग चॉकलेट्स, और दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ तक इतना ऑर्डर्स आ जाते हैं कि उनको लखनऊ तक वो डिलीवरी करके आते हैं. इतना there's a lot of scope in that chocolatiers. और चॉकलेट के लिए इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए. You just need the molds, थोड़ा सा एक्सपर्टीज़, थोड़ा सा स्मॉल टूल्स, एंड देन अगर फ्रिज है तो दैट इज़ गुड, और सम रैपिंग पेपर, एंड देन गेट सेट गो. तो एंड योर बिजनेस स्टार्ट्स टू रोल. सो आज के डेट में इवन द रॉ मटेरियल, जो चॉकलेट भी जो है 8-10 साल पहले जो स्टेटस था हमारे इंडियन मार्केट में, और अभी का जो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई मीन एवरी नेक्स्ट डोर इज़ सेलिंग दोज चॉकलेट स्लैब्स, right? So chocolate ka program, a lot of people, a lot of students might be doing, and then there's a lot of scope also. तो इसके अलावा और एक है, we can be an executive pastry chef. तो पेस्ट्री शेफ़ जो हैं, तो स्पेशली 5 स्टार होटल्स में या 4 स्टार होटल्स में वो काम कर सकते हैं, बट देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ़, मेरा मानना ये है कि मिनिमम ऑफ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो अगर होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करके हम विदेशों में 1.5-2 साल ट्रेनिंग करके आए, और थोड़ा सा 4-5 साल उधर भी काम कर लिए, तो मे बी वो 15 साल we can bring it down to maybe 10 years. तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, काफ़ी
पेशेंस की बात है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑल्सो. सो दिस एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ इज़ लाइक बहुत मतलब कम ही दिखा जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इन वन होटल वन एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ इज़ देयर, तो उनका डिमांड थोड़ा सा कम है. बट देन येस, ओवर द ईयर्स, थ्रू आवर पैशन, थ्रू आवर ग्रेट डिटर्मिनेशन, तो हम इसको वी कैन डेफिनेटली बी ऑप्ट फॉर बीइंग अ पेस्ट्री शेफ फॉर अ बिग स्टार होटल. नेक्स्ट कैटेगरी जो है, दैट विल बी द फूड स्टाइलिस्ट. द फूड स्टाइलिस्ट, ये देखिए एक दिस इज़ कंपेरेटिवली रिलेटिवली अ न्यू सेक्टर विच इज़ कमिंग अप. अगर हम फोटोग्राफी करते हैं, ये जो हम जो काम करते हैं, एवरीथिंग इज़ लाइक इट गोज़ डिजिटल और इट गोज़ ऑन द प्रिंट मीडिया, या हमारे होटल के या आउटलेट के मेन्यू बनवाना है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट टाइम अ फूड स्टाइलिस्ट इज रिक्वायर्ड. कहाँ पे कैसे रखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द गार्निशेस, द अरेंजमेंट ऑफ द डिशेस, जहाँ पे दिस the photography or the effect will be good. So that is like a food stylist or food presentation, we can say. Fortunately, ये फूड स्टाइलिस्ट का एक ऑलरेडी एक डिसिप्लिन, एक ब्रांच आ रखे हैं. आई हैव सीन प्लेसेस इन जापान एंड कोरिया जहाँ पे ये फूड स्टाइलिंग इट्स इज अ 2 years कोर्स. और हमारे पास भी बच्चे पढ़ रहे हैं फूड स्टाइलिंग के ऊपर, बट देन दैट इज़ जस्ट 1 chapter, मे बी इन 1 semester में एक चैप्टर पढ़ लेते हैं. बट फूड स्टाइलिस्ट जो है, इट्स अ बिग थिंग एंड समवॉट रिलेटेड टू यू कैन से मास मीडिया कम्युनिकेशंस, तो उसके साथ भी इट कैन बी रिलेटेड. जो मैगजीन्स के लिए लिखा जाता है, या ऑन द डिजिटल मोड में भी जो न्यूज़ जो हम जो पढ़ते हैं मोबाइल में, तो उसके लिए वो दैट फूड स्टाइलिस्ट इज रिक्वायर्ड. Most of the magazines have a food column with Exactly, them, exactly. For those, Will. I think they will be working and they will be presenting their dishes in a beautiful way, photographed and all, Right. getting them photographed. and all, एग्जैक्टली, yeah. ताकि एक झटके में वो अटेंशन ले सकते हैं. सो दैट इज़ द फूड स्टाइलिस्ट. पेस्ट्री शेफ, यस, एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ और पेस्ट्री शेफ थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस. बट यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बेकरी और पेस्ट्री क्या डिफरेंस है. समटाइम्स वी से बेकरी एंड पेस्ट्री. सो बेकरी जो है, दैट इज़ मेनली दैट इज़ द हॉट सेक्शन. पेस्ट्री मीन्स पेस्ट्री जो है हमारे बेकरी और पेस्ट्री टर्म्स में, पेस्ट्री इज़ अ पेस्ट ऑफ flour and liquid and salt and sugar. That is a pastry. That is mainly the cold section. Bakery में we do work with the yeast. Yeast के normally yeast related work, जैसे breads. And pastry में क्या है कि we deal with the different pastes, like cookie paste, like donut paste, so all these like laminated pastry. So that is the pastry section. But देखा जाए तो bakery and pastry chef is like is almost working together on the same lines. So career opportunities हम discuss कर रहे हैं, तो अब तक what we have discussed is like we can be an artisan bread baker, artisan हो या wholesale में भी we can work in a plant. And then हम खुद का bakery owner, we can be a bakery owner also, like घर से करे या बाहर करे. And then cake designers, yes, of course, they are much in demand, especially European American countries में एक special category है जो cake design, cake finishing वो ही करते हैं, cake designing, decorations, chocolate garnishes, they are doing it. चॉकलेटियर वो चॉकलेट का जो काम कर लेते हैं. एंड देन पेस्ट्री शेफ, ऑफ कोर्स, विच वी डिस्कस्ड जस्ट राइट नाउ, कि उनका काम क्या है. ही हेड्स द बेकरी एंड द पेस्ट्री डिपार्टमेंट. तो फूड स्टाइलिंग ऑल्सो एक एरिया है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं. और अभी लास्ट स्कोप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल ही बहुत it's pretty much difficult, I would say, to get into research and development, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए we need skill on the hands, we need knowledge, we need technology.
तो at a very later stage we can join this research and development जहाँ पे रेसिपीज़ डेवलप कर सकते हैं. बट देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये है कि नॉर्मली द बेकरी पीपल दे जॉइन द होलसेल प्लांट्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. जो आर्टिसन बेकर्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना आई वोंट से दैट नॉट मच इज़ देयर. Okay, research and development के लिए we have to study bioscience, we have to study food technology जहाँ पे research and development there could be two ways of thinking. एक तो है कि आर्टिसन बेकरी जो हम हाथ में जो काम करते हैं वो कुकीज़ बनाएंगे एंड देन दे विल सेल इट आउट मे बी 4 days 5 days शेल्फ लाइफ है. बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करेंगे इफ़ समवन इज़ इनटू इट, वो सोचेंगे कि इनका शेल्फ लाइफ हम केमिकल डाल के या प्रिजर्वेटिव्स डाल के हाउ वी कैन मेक इट टू 1 month. So or 2 months. So ये research and development. So research and development is very much associated with the wholesale bakeries जहाँ पे people want to increase the profitability, people want to increase shelf life, right? और जो artisan bakery जो है वो हम cookies बनाएंगे, हम cookies का we will try to improve the color, we will try to improve the presentation. तो so and उनका taste हम develop कराएंगे. So that we have to think on these lines. So these are the basic career opportunities. Right, sir. You have very beautifully explained all the career options that are available to our learners who are going through this course on bakery and confectionery. There is a huge scope in that. बहुत सारी demand है, बहुत सारा scope है, but the important thing is आपका स्किल्स जो हैं वो अप टू द मार्क होने चाहिए. यू नीड टू कॉन्स्टेंटली डेवलप योर स्किल्स. जो आपका कोर्स है उसे कंप्लीट करने के बाद, और जैसे सर बता रहे हैं कि जो आजकल everybody is trying to become a baker. सभी लोग इस कोविड के टाइम पे everybody I think would have tried to bake a cake in these times. और उसके बाद बहुत सारी बेकरीज हम सब ने अपने आसपास देखी हैं जो कि फ्रॉम होम ऑपरेट हो रही हैं. तो ये जितनी भी बेकरीज हैं वो some of them might have done some course and then they have started. और उसके बाद when they उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब वो बहुत अच्छा सीख जाते हैं, दे देमसेल्फ बिकम अ कोच और वो टीच करना शुरू कर देते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आई वुड लाइक टू से कि वन ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी दैट इज एग्जैक्टली दैट इज देयर इन दिस एरिया. वेरी ट्रू. राइट. Right, sir. And other than those, like sir has told about chocolates with the celebrations. Earlier हमारा क्या होता था, birthdays and all we would be celebrating, but now there are so many, Mother's Day, Father's Day, and all those things are coming up in India. Westernization हो रहा है, people are learning about these days, and they are with these the demand of bakery products definitely is increasing at a very high level. Right. For every celebration we need a cake, we need chocolates. Yes. So I think there is a huge market that is waiting for us, and we need to just go through the course. We have to develop our skills, and we can just sail through. Exactly. तो आगे बढ़ते हैं तो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज वी वर डिस्कसिंग, बट देन एक मन में डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल कम लाइक ये व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड हमारे बेकरी पेस्ट्री में कदम रखने के लिए. व्हाट आर द थिंग्स विच वी रिक्वायर. सो बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या स्किल्स हैं जो हमारे बेकर के पास होने चाहिए. तो इन पर बात करते हैं. उससे पहले सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वापस आकर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. नमस्कार. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से जंग अभी है जारी. तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं. सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना जिम्मेदारी है हमारी. मास्क लगाकर निकलें घर से बाहर, 2 गज दूरी बनाकर करें नमस्कार, हाथों को धोएं दिन में बार बार. तभी सुरक्षित रहेगा कोरोना से देश और समाज. शिक्षा का जिम्मा NIOS का काम, घर से शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा हुई अब आसान.
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम ब्रेक के बाद हमारे लर्नर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी स्कोप एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सर से जाना था कि हम कौन से अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में अवेलेबल हैं। एज अ बेकर हम कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सर से जानते हैं कि क्या स्किल्स हैं एक बेकर में होने जो बहुत ज़रूरी हैं। राइट तो बेकरी तो है इंटरेस्ट हमने आपके मन में जगा दिया, बट देन अभी क्या चाहिए कि बेकरी पेस्ट्री के ऊपर पढ़ाई के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स, द स्किल्स रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइक द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हम बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि organization like we want to put up a bakery setup। एक बेकरी सेटअप में इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, टेबल चाहिए होता है, वी वांट दिस टू तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में वी हैव टू फाइंड आउट कि हम किस कोने में टेबल रखेंगे और कितनी दूरी में ओवन रखेंगे, ओवन किस टाइप कहाँ से लेंगे, व्हाट इज़ दी ऐसा नहीं कि वी टेक अ वेरी बिग ओवन। एनालिटिकल स्किल्स ऑल्सो, जो 100 लीटर की ओवन लेंगे या 1000 लीटर की ओवन लेंगे,
all these matters like organization, किस प्राइस रेंज में लेंगे, क्या डेवलप करेंगे. सो दिस इज़ लाइक द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कहाँ से कितने एम्प्लॉयज़ रखेंगे. सो दीज ऑल कम अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन. The power to organize things and then to forecast also कि हम कितना बिजनेस करेंगे, व्हाट इज़ आवर टारगेट. तो उस हिसाब से मशीन्स खरीदना, कहाँ पे क्या प्लेस करना है, all these will be covered under that organization. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. यस, बिल्कुल. हम भले बेकर्स और ये पेस्ट्री शेफ्स पीछे काम करते हैं, बट देन एट टाइम्स कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, एक गेस्ट आ गए, हम एक बायर आ गए, एंड देन आपको द बायर इज़ टेलिंग यू समथिंग. तो वो कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनका नीड क्या है. तो इसके लिए वी हैव द नॉलेज ऑल्सो, वी नीड टू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, कि समझना चाहिए कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से. वी हैव टू टेक द डिटेल्स ऑल्सो कि कब ये प्रोडक्ट को देना है, कितना साइज़, क्या फ्लेवर. अगर हमारे पास वो फ्लेवर नहीं है, क्या सजेस्ट कर सकते हैं. अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन पा रहे तो हम क्या ऑल्टरनेटिवली क्या सजेस्ट कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स एक तो बायर एंड सेलर के साथ है. कम्युनिकेशन विद वेंडर्स ऑल्सो, जो हमारे को जो इक्विपमेंट्स दे के जाएंगे, तो वो इक्विपमेंट्स का कैपेसिटी, इक्विपमेंट्स का मेक, इक्विपमेंट्स का प्राइस स्ट्रक्चर, तो वो सब दैट हैज़ टू बी लाइक इन डिटेल, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कब दे के जाएंगे, कितने दिन, वारंटी गारंटी क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन है, so then all these things will And be also to present what the products that you are having to the Right. consumer, so that they get interested and Right. they are एग्जैक्टली yes. एग्जैक्टली. जो हमारे पास जो है ऑलरेडी, उसको अच्छी तरह उनको समझाना. जी. समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गेस्ट हमारे सामने नहीं है, तो हम फोटो भेज दिए, एंड देन ओवर द फोन वी हैव टू फाइंड आउट, उनको कन्विंस कराना, टू गेट बिजनेस. सो देयर इज कम्युनिटी, ऑल्दो वी वर्क एट द बैक ऑफ द ऑफिस और बैक ऑफ द होटल. कम्युनिकेशन बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इवन जो एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे पास, अगर स्टाफ है, 10 स्टाफ हैं, तो उनको कम्युनिकेट करना कि ये प्रोडक्ट, डेफिनेटली देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ प्रोसेस. तो उनको भी कम्युनिकेट करना है कि आज के डेट में क्या क्या ऑर्डर्स है, आज के डेट में क्या ख़राबी है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या आगे के लिए क्या करना है, कल हमने क्या किया था. तो ऑल दीज हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड फॉर डेवलपमेंट और फॉर दी profit of the organization. So skill, communication skill is pretty much important. हमारे को over the years we have to develop. मुझे I'll tell you personally, मैं जब when I was younger, I could not communicate, but वो काम करते करते and communication will come. What my experience is saying is like knowledge से. If we have the knowledge, तो easily communicate कर सकते हैं. That knowledge से that gives a lot of confidence, and then automatically the communication skill develops. But then ये मन में रखना है कि हमारे को develop करना है. We have to develop, and then one certain fine day you will be finding like we are perfectly okay, we are able to get business. Ultimate goal, हम काम करते हैं for the business of the company or business of our own organization. So that comes up, right? So next skill of what we are going to have is like attention to detail. Attention to detail in the sense that हमने एक कप केक बनाए, तो कप केक में ऐसा नहीं है कि कप केक कप बड़ा है और उसके अंदर केक छोटा है, या बेकिंग के टाइम केक का पेपर जो है वो किसी तरह वो जल रहा है, होना नहीं चाहिए. बट देन पॉसिबल फ्रूट रखे हैं तो फ्रूट ऊपर जला हुआ है, क्यों है,
you know. So attention to detail, even the piping also. Guest मांगे हैं कि vanilla फ्लेवर्ड का क्रीम है और हमने डाल दिया, बिकॉज वनीला इज़ नॉट अवेलेबल, वी हैड हमारे पास स्ट्रॉबेरी क्रीम पड़ा हुआ था, वो हमने डाल दिया. सो ऑल दीज अटेंशन टू डिटेल इन एवरी वे. मशीन्स हम काम कर लिए तो मशीन्स को इलेक्ट्रिकल सॉकेट या प्लग से निकाल के रखना. उसका मशीन्स का मान लीजिए हमने ब्रेड स्लाइसर है तो ब्रेड स्लाइसर में क्रम्स पड़े हुए हैं, उसको साफ़ करके रखना. बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो चूहे और कॉकरोचेस वो आ सकते हैं, एंड देन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर दी वर्किंग प्लेस. तो अटेंशन टू डिटेल इन एवरी स्टेप. सो अगर हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो इक्विपमेंट्स में उसको कैसे रखना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे कब चेंज करना है. तो ऑल दीज थिंग्स मेटिक्यूलस, दैट इज़ लाइक अटेंशन टू डिटेल एवरीथिंग. इवन जो हमारे साथ जो काम जो कर रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. कभी कभी एक बार आई स्टिल रिमेंबर, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ में देयर वाज अ बैंडेज, तो ऑन माय फिंगर तो बैंडेज. तो मैं काम पे गया तो शेफ़ ने देख लिया तो ही सेड क्या हाउ कितना गहरा है दैट कट. So I was given a day off, like, and I was told like कि ये खाने के साथ मिक्स अप हो सकता है और समथिंग. आई कुड वॉक. छुट्टी मीन्स इन द सेंस दैट उसी एरिया से मेरे को लिफ्ट करके आई वॉज पुट इन अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे वो मिक्सिंग और वो काम नहीं था. सो ऑल दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट अटेंशन टू डिटेल. कैसे एक फैक्ट्री या वर्किंग प्लेस को कैसे चलाना है. सो देयर आर टाइम्स लाइक आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल. आई थिंक लास्ट समर में, लास्ट ईयर समर मैं गया इन द बेकरी लेबोरेटरी में. तो वो फ्रिज के नीचे बहुत सारा पानी गिरा हुआ था. तो इमीडिएटली दैट इज़ लाइक इट केम टू माई माइंड कि फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज इट स्टार्टेड डिफ्रॉस्टिंग और पानी बह रहा है एंड इट्स लाइंग ऑन द फ्लोर, देयर इज़ अ पूल ऑफ वाटर आउट देयर. So that attention to detail, that attention to anything, attention to detail also. कहीं पे sometimes हम हमारे इंडस्ट्री में we tell the students कि we have to improve our senses. हमारा eyesight, हमारा nose, smell, we have to improve the sense organs. Right. Smell is also very 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 important. और एक चीज़ मैं बताऊँ, माइक्रोवेव चल रहा था एक क्लास में, एंड देन आई वॉज टू द साइड. तो माइक्रोवेव कुछ ज़्यादा ही कुछ गर्म होने लगे, एंड देन इट स्टार्टेड स्मेलिंग. तो मैं देखा कि वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट प्लग दैट 15 एम्पियर का जो प्लग है वो जलने लगे, एंड देन दैट स्टार्टेड टू स्मेल. So that is also all these things, attention to detail, like every time, to be away from danger, to forecast, all these matters. So basically it's a life skill. Yes. Right? We have to improve. ये बचपन से we will tell the Indian youth कि बचपन से आप life skills, soft skills को develop कीजिए. So it will be very much beneficial at a later stage. Why bakery में क्यों? Anywhere we go, even banking sector चले जाइए, hospitality sector चले जाइए, airline sector चले जाइए, we will have to to give attention to all this detail and develop ourselves. इसके बाद है pressure के अंदर काम करना. There is always pressure. Each and every sector. किचन एरियाज में सर ज़्यादा ही होता है. Yes. Last minute orders are there, order cancellations are there, order increase of order is there. तो we have to keep pressure. कभी कभी मशीन ख़राब हो जाते हैं,
मैं आई स्टिल रिमेंबर कुछ वीआईपी आने वाले थे होटल में, एंड देन वीआईपी का ऑर्डर्स था क्रोआसॉ। तो क्रोआसॉ नॉर्मली हम मशीन से काम करते हैं, लैमिनेशन इस एंड ऑल दिस, बट देन वी केम टू नो दैट द मशीन ख़राब हो गए। तो सडनली एक प्रेशर आ गया कि हाथ में कैसे बेलेंगे उसको, इतना दैट लैमिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस वो परफेक्शन से हम नहीं कर पाएंगे। सो बट वी हैड टू डू इट बाय हैंड ऑल्सो, वी हैड टू डू इट। So ये सब moments will be coming where we have to handle it in a very phased manner, in a very calmly manner. We have to do this. इसके आगे another skill is like curiosity or creation. So curiosity जो है कि that inner appetite of learning. कि ये macarons है तो macarons कैसे बन रहा है, क्या क्या ingredients है, what are the different sizes, what are the different flavors which we can put. तो ये सब जानने का एक क्यूरियोसिटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास में ही सीखेंगे, आप ये शो के द्वारा ही नहीं सीखेंगे। यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन गो टू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट बुक्स, which can increase your knowledge and you can be enlightened about it. और बेकरी जो है कि क्रिएटिविटी इज़ प्रीटी मच वेरी मच इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन द रिटेल सेक्टर में। होलसेल में तो इतना नहीं मैं बोलूँगा कि क्रिएटिविटी चाहिए, बट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ स्टार होटल, वहाँ पे द क्रिएटिविटी इज़ लाइक द मिक्स ऑफ द कलर्स, द मिक्स ऑफ द अरोमाज, मिक्स ऑफ फ्लेवर्स। सो वी हैव टू हैव अ कीन अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि चॉकलेट के साथ ऑरेंज हम मिक्स कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ पेपरमिंट मिक्स कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ वी वोंट लाइक टू हैव कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, चॉकलेट कॉफ़ी देयर आर, हो सकता है ऐसा कोई सिलेबस में नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते, बट एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कॉफ़ी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, चॉकलेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। सो what happens is both of them try to dominate the other. तो creativity जो है in every way अगर है हमारे पास तो that skill is very much required by the baker. इसके आगे लास्ट एंड फाइनल जो कि इट इज़ एवरी रिक्वायर्ड इन एवरी सेगमेंट, इन एवरी इंडस्ट्री इट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ दी पेशेंस एंड डेडिकेशन। पेशेंस येस, हमारे इंडस्ट्री में इनिशियल स्टेजेस मैं अपना होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि इनिशियल 5-6 years देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राइंडिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ देयर, वी हैव टू बी पेशेंट, है ना। वही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट आके ट्रेनिंग करते हैं होटल्स में एंड वो आके बोलते हैं कि सर हमारे तो सिर्फ ट्रॉली स्टोर्स लेके जाते हैं और ट्रॉली पुल एंड पुश यही करते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ट्राई टू हैव अ लर्निंग फ्रॉम देयर। कैसे वो स्टोर्स जाते हैं तो स्टोर्स में इतने सारे बॉटल्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप हैव पेशेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि आप अभी आज जिसे सरकार भी हमारे प्रमोट कर रहा है, वी डोंट हैव टू बी अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। सो यू डोंट हैव टू सीक जॉब। आफ्टर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके हम अपना खुद करेंगे और 5 लोगों को हम एंगेज करेंगे, सो दैट इज़ दी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। तो एंड वी ऑल्सो वांट दैट आप क्यों काम करें, आप अपना खुद कीजिए और उसके साथ और 5 लोगों को जोड़िए, you provide the jobs, right? So इसमें क्या है कि अगर आपको स्टोर में अगर आपको ट्रॉली धक्का देना पड़ रहा है तो आप स्टोर में जाके सीखिए। जो जितना स्टोर में आप टाइम बिता रहे हो, आप उन पे देखिए कि किस शेल्फ में क्या है, मैदा नीचे क्यों है, चीनी ऊपर क्यों है, राइट, कहाँ पे खिड़की कहाँ पे है, उनका टेम्परेचर क्या है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे अगर इसको अगर नहीं, वो एपेटाइट अगर नहीं है, राइट, वी हैव टू हैव दैट एपेटाइट कि हमें सीखना है। स्टोर में मैं एवरी डे आई एम गोइंग टू द स्टोर टू पिकअप एंड, और मन में रखना है कि मैं 4-5 चीज़ें मैं नया चीज़ सीखूंगा, बिकॉज वही चीज़ें 5 साल आगे, 6 साल आगे, 10 साल आगे जाके आपको वो दैट नॉलेज विल हेल्प यू। वो हमें चेक करना है कि हम यहाँ पे किस ब्रांड के विनीगर यूज़ कर रहे थे, किस ब्रांड के मैदा यूज़ कर रहे थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब खुद करूँगा अपना
तो दैट विल कम टू द हेल्प. अगर ट्रॉली अगर है, स्टोर्स में स्टोर मैन है, स्टोर मैनेजर है, उनसे आप दोस्ती कीजिए उनसे, बिकॉज दैट पर्सन विल बी अ रिसोर्स पर्सन फॉर अस एट अ लेटर स्टेज. क्योंकि आपको शायद हो सकता है कि आगे जाके आपको मार्जिन चाहिए एट अ गुड होलसेल प्राइस. तो आप उस स्टोर मैनेजर से आप उसको यू कैन बी आस्किंग दैट स्टोर मैनेजर दैट relevance or राइट सर. सर बहुत ब्यूटीफुली आपने हमारे लर्नर्स को जो है ये बता रहे हैं आप कि क्या स्किल्स हैं दैट अ बेकर मस्ट हैव. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन टू डिटेल जो आपने बताया सर, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेकिंग का अपना एरोमा होता है, यू नो व्हेन द केक इज़ बेक्ड. सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू स्लोली डेवलप in yourself and you have to have a appetite for learning new things every day. सर हम बात कर रहे थे लाइक आप अपना काम शुरू करें, you engage people. So I would like you to tell our learners what are the pros and cons of starting a bakery, Right. so that they have a clear idea in their mind कि, Right. what they are going to face further. एक तो देखिए प्रोज जो है, यू विल हैव योर ओन कस्टमर बेस. एक कस्टमर बेस बन जाता है. ऑफ कोर्स लॉयल कस्टमर्स आर ऑलवेज देयर. एंड देन यू हैव जो प्रॉफिट्स जो है बेकरी में एट टाइम्स देखा जाए तो इट इज़ नॉट टू दैट एक्सटेंट. बट येस, अगर इफ़ एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, अगर पिलफ्रेज नहीं है, अगर डैमेज नहीं है, देन द प्रॉफिट्स आर मार्वलस, राइट. बट देन एट द सेम टाइम देखिए, एक ब्रेड देखिए मार्केट में हाई वॉल्यूम में अगर काम होता है होलसेल बेकरी, से फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ अ ब्रेड, वहाँ पे कितना ब्रेड, हाउ मच विल बी द प्रॉफिट बी. अगर किसी कोई कंपनी अगर कर रहे हैं तो मे बी देयर इज अ इन पैसे, मे बी फॉर 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, ओके, मे बी 25 पैसे, बट दे आर डूइंग इट इन हाई वॉल्यूम. राइट. तो अगर आप हाई वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं या low volume, maybe yes, of course, when a cake is like 800 rupees a kilo, you can easily make a profit of around 70%, 60% taking out the overheads. But क्या है कि आपको that product has to sell, that product should not be damaged, that product should not be lying in the shelf. So on pre-orders में अगर काम कर रहे हैं तो definitely that is a very good thing. And then bakery जो है, ये bakery हम घर से भी कर सकते हैं. There are a lot of people who are doing it. I know a lot of home bakers, जो कि थोड़ा सा स्किल अचीव किए, एंड देन दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क एंड देन स्टार्टेड देयर ओन बेकरी. एंड देन एक है कि आज के डेट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड which is there, a lot of demand which is there in the for the bakery products. तो कॉन्स जो है, थोड़ा डिसएडवांटेजेस ये कि अगर हम व्हाट वी आर कंप्लायंस जो है, जो गवर्नमेंट का लॉज जो है, that is very much strict, and that is like अभी हल्के धीरे धीरे it is becoming a little easier, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि अगर हम FSSAI के लॉज या सर्टिफिकेट चाहिए तो हम कहाँ पे अप्रोच करें. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अ लिटिल मोर लीनियंट एंड मच मोर easily available. फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे लगवाना है, फ्लोर का मटेरियल क्या होना है, ऑल दीज गाइडलाइंस they should be like through an easy channel, like और एक है कि प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि हम वी वर डिस्कसिंग अ लिटिल अर्लियर कि प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे अगर इफ़ वी आर आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलिंग, और या डैमेज हो रहा है या कुछ हो सकता है. कभी कभी एक लॉट कुकीज़ जल सकते हैं बिकॉज ऑफ द ओवन टेम्परेचर, ओवन ठीक से काम नहीं किया, द होल लॉट इट्स वेस्टेज. सो ऐसा है. एंड देन कॉस्ट ऑफ द बेकरी में जो इंग्रेडिएंट जो अवेलेबिलिटी जो है आज के डेट में तो फिर भी इट इज़ मच मोर अवेलेबल, बट फ्यू ईयर्स अर्लियर there are some items which we ingredients जो बेकरी में जो यूज़ करते हैं, and that is not available, readily available.
सो जैसे कि सिंपल थिंग आई विल टेल चॉकलेट 5 साल पहले चॉकलेट लेने के लिए मेरे को आई हैड टू कवर 15 किलोमीटर्स बट आज 5-10 मिनट्स वी टेक इट एट द नेक्स्ट डोर चॉकलेट स्लैब्स मिलने लगे एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द अदर सिटीज़ लाइक बट ये मेट्रोज़ में तो अभी ऐसा हो गया कि एवरीबडी इज़ डूइंग चॉकलेट बिजनेस और चॉकलेट का स्लैब्स वी आर गेटिंग इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर और एक डिसएडवांटेज और ऐसा है कि यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और लास्ट मोमेंट ऑर्डर्स आर देयर एंड लास्ट सो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड हो सकता है कि आपको सुबह 3 बजे भी 4 बजे भी आके मॉर्निंग बेकरी के लिए आपको ट्रे सेटअप करना है so all these things are the like pros and cons of the bakery. But the last minute orders and all those are kind of they add thrill also to yes, to your if you yes. love your profession exactly and you want exactly to come. profession dedication अच्छा है तो अगर आपको मान लीजिए कि अगर रिपीट क्लाइंट है रिपीट बायर है तो वो मांग रहे तो आपको वो that satisfaction is like it's huge. Yes, that's immense. Yes, right sir. So sir अभी अगर हम मार्केट की बात करें व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग इन इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ट्रेंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यस फर्स्ट ट्रेंड जो मैं कि स्ट्रेस करना चाहूँगा इज लाइक दे वांट द हेल्दियर प्रोडक्ट्स दे मच मोर प्रोडक्ट्स व्हिच आर मच मोर लाइट एंड समटाइम्स लिटिल बिट फैंसी फ्लेवर्स आल्सो लाइक आज के डेट में पीपल आर आस्किंग लाइक दे नीड people are asking like they want gluten free, they want egg free, they want preservative free, so that is one trend. कुछ दिन पहले I still remember there was one one request from my side from my friend circle side. They want something cookies which are made with good, okay, with jaggery. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कुकीज़ नॉर्मली हम शुगर से करते हैं बट दैट इज़ द ट्रेंड विच आई एम सीइंग एंड देन मेरे पास गुड़ का रेसिपी था नहीं रेसिपी देन आई स्पोक टू माई अनदर शेफ फ्रेंड कि भाई रेसिपी दे दो बोला हाँ गुड रेसिपी है बट इट इज़ लाइक ऑन अ ट्रायल बेसिस दैट मीन्स व्हाट आई कुड फाइंड आउट वाज ये मच मोर हेल्दियर प्रोडक्ट्स दे आर being in demand like sometimes I still remember kuch mahine pehle there was some guest who was wanting a vegan dairy free desserts vegan desserts तो ये सब कैटेगरीज आने लगे एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लूटेन फ्री दैट इज़ फॉर दी सेलिएक जो सेलिएक डिजीज़ जो है जो ग्लूटेन को डेवलप नहीं कर पाते हैं so those are the people there are different categories which are wanting some want like desserts for the diabetes for the diabetic के लिए so these are the trends Indian baking में जो की है these are the things ये आ रहे हैं and then और एक है कि the growing traditional bakeries are now bringing in new products जो companies जो है they are bringing up something the new product new line of products जैसे कि पहले there used to be premix of sponge cakes but then नया लाइन में आ गया कि egg free sponge mix right so these are the developments which are like which are coming up right sir sir दिस हैज़ बीन ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छे से हमारे लर्नर्स को सारा जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके पास वो सारा आपने डिटेल में बताया द स्किल्स दैट दे नीड टू डेवलप अमंग्स देमसेल्व्स एंड द मार्केट व्हाट एक्चुअली द करंट इंडियन मार्केट इज़ लाइक एंड वट वी कुड मेक आउट कि जबकि संभावनाएं अपार हैं बस हमें ज़रूरत है कि हम अब कड़ी मेहनत करें हम लोग अब डेडिकेशन के साथ काम करें हार्ड वर्क करें और अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करते रहें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम एंड गिविंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन टू आवर लर्नर्स थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार जैसा कि आप